بہار میں ہجومی تشدد کے واقعات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے، یہ کہنا ہے سابق ایم پی علی انور کا۔ علی انور کے مطابق نوادہ میں محمد عمران نام کے ایک نوجوان کو چوری کے الزام میں مار دیا گیا ہے۔ موب لنچنگ میں مارا گیا نوجوان اپنے گھر کے چولہے کو روشن کرنے کے لیے دن رات کام کرتا تھا۔ علی انور نے صوبے کے وزیر اعلیٰ سے موب لنچنگ کے خلاف سخت قانون بنانے کا مطالبہ کیا۔ چاہتے ہیں بہار کے مکھی منتری ماننیہ نتیش کمار جی سے کہ کئی گھٹنائیں ہوئی ہے، یہ اکیلی گھٹنا نہیں ہے، ان کو موب لنچنگ کا قانون بنانا چاہیے، موب لنچنگ کے خلاف قانون بنانا چاہیے۔ اور یہی مانگ ہم نے پہلے جھارکھنڈ کے مکھی منتری شری ہیمنت سورین جی سے بھی کی ہے، اور کہ موب لنچنگ کا قانون بنائیے۔ کئی راجیوں نے، بنگال نے، کیرل نے، راجستھان نے، منی پور نے، کئی لوگوں نے اپنے ہم موب لنچنگ کے خلاف قانون بنایا ہے۔ آپ بھی قانون بنائیے۔ اور دوسرا کہ اس طرح کے جتنے معاملے ہیں اس کو فاسٹ ٹریک پر لیجئے، اس کی سنوائی جلدی کیجئے، جلدی اس کا نپٹارہ ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو معاوضہ ملنا چاہیے۔ آپ سانپ کاٹنے سے معاوضہ دیتے ہیں، آپ دوسری درگھٹنا میں کرتے ہیں، لیکن یہ سراسر ہیومن رائٹ کا وائلیشن۔ آسام میں عوام پر ہوئے پولیس مظالم کے خلاف بنگلورو میں ایس آئی او نے احتجاج کیا۔ شہر کے موریا سرکل پر کینڈل لائٹ پروٹیسٹ کے ذریعے آسام کی حکومت کے خلاف غم اور غصے کا اظہار کیا گیا۔ ایس آئی او کے نمائندوں نے کہا کہ آسام میں قانونی طور پر آباد علاقوں کو اجاڑنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ حکومت کے اشارے پر پولیس عوام پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے کہا کہ آسام میں انسانی حقوق کی کھلے طور پر خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے باوجود مرکزی حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ دہلی میں حضرت امام حسین اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ دہلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں امامیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ اور رائزنگ حسینیت آرگنائزیشن کی جانب سے امام حسین اور ہندوستان کے ایشو پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں جنرل جی ڈی بخشی سے لے کر بہت سے مذاہب کے ماننے والے شامل ہوئے اور حضرت امام حسین کی قربانی کو یاد کیا۔ پروگرام میں شامل ہونے والے سبھی مذاہب کے لوگوں نے کہا کہ امام حسین کی قربانی انسانیت کے لیے تھی اور دہشت گردی کے خلاف تھی۔ دیکھیے، اگر دنیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغامات کو پڑھ لے اور سمجھ لے تو دنیا میں امن ہو سکتا ہے، محبت ہو سکتی ہے، بھائی چارہ ہو سکتا ہے، لوگوں میں اتنا پیار ہو جائے گا کہ جیسے امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے۔ امام حسین چاہتے تھے کہ دنیا میں امن رہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں، محبت پیار کے ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، اختلافات نہ ہونا چاہیے ہے۔ رسول اللہ کے نواسے کا یہ مقصد تھا، اور اسی مقصد کو لے کے آپ نے کربلا میں اپنی قربانی پیش کی۔ اور آج بھی جو آج اسلام اور دین اور شریعت اور مذہب اور انسانیت باقی ہے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے باقی ہے۔ میسیج تھا، یونیورسل میسیج تھا، پورے کائنات کے لیے میسیج تھا، کسی ایک کنبے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے ان کا ایک امن، چین، سکون کا ایک میسیج تھا۔ عبادت انہوں نے کی تاکہ ہم لوگ جو ہے، جو بھی نام لیں آپ دیکھیے فوج میں کہتے ہیں اگر پانی کو آپ تنی بولے یا واٹر بولے یا جل یا جول، وہ پیاس بجھاتا ہے۔ تو آپ کسی بھی نام سے مالک کا نام لے لیں، لیکن وہ عبادت پہنچ جاتی ہے وہاں۔ اور میں نہیں سمجھتا اس کے اوپر ہم لوگوں کو دند فند کرنا چاہیے۔ دھرم ایک ہوتا ہے، دھرم کے ٹھیکیدار دوسرے ہوتے ہیں۔ صحیح بات، سب کے لیے پوری مانوتا کی رکشارتھ ان کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد پہلی شہادت ہے جو ٹیررزم کے خلاف، جو ٹیررزم کے شکار بنے امام حسین صاحب۔ اس کے بعد سلسلہ بتسور آج بھی جاری ہے، الگ الگ روپ میں، الگ الگ ناموں سے، الگ الگ پرستتیوں میں، جبکہ ہم لوگ آتنکواد کا بالکل مذمت کرتے ہیں، خلافت کرتے ہیں، وروଧ کرتے ہیں۔ سبھی دھرموں کے لوگوں کو، سبھی سنسار کے لوگوں کو امام حسین صاحب کی شہادت سے شکشا لینی چاہیے اور مانوتا کے پتھ پر چلنا چاہیے۔ آپسی بھائی چارہ، گنگا جمنی تہذیب، ادب ہمیشہ قائم رہے، یہی میسیج، یہی ہماری
सोच है, ऐसी हमारी भावांजलि। देखिए, शहादत हुसैन एक मज़हब के लिए अक़ीदतमंदी की बात नहीं है। शहादत हुसैन के लिए दुनिया के तमाम मज़ाहिब उनका एहतराम करते हैं, और एहतराम भी इस तरह का नहीं कि सिर्फ़ ज़बान से, बल्कि जिस तरह मुसलमान अक़ीदत और एहतराम के साथ उनके ताज़ीदारी करते हैं, जुलूस वग़ैरह निकालते हैं, ऐसे ही हिंदू धर्म के भी बहुत सारे लोग, ख़ास तौर से दत्त गोत्र के जो लोग हैं, वो हुसैनी ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं। उनके यहाँ आप जाकर देखिए, राजो रजवाड़ों के यहाँ आप जाकर देखिए, ग्वालियर के अंदर रानी झांसी के अंदर जो है, रानी झांसी के यहाँ जिस तरह से बाकायदा ताज़िए का प्रोग्राम हुआ करता था, और आज भी उनके यहाँ कोतवाली में, झांसी में ये प्रोग्राम चलता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम उनको ये नहीं कह सकते कि हुसैन हमारे हैं। और आज एक ऐतिहासिक जो दिन है, आज इमाम हुसैन साहब के विषय में जो बातें सुनी और हम पढ़ रहे थे कई सालों से, लेकिन आज इस ऐतिहासिक मौके पर आने का परमात्मा ने मौका दिया, उस महान परमेश्वर ने। और इनवाइट करने वाले तमाम अतिथियों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। करबला का एक छोटी सी यादगार है, जहाँ पर जब इमाम साहब जब युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, और जिस समय चिंता की एक बात कह सकते हैं कि जब शहादत की बात हो रही थी, उस समय न केवल मुस्लिम कौम ही थी, लेकिन वहाँ पर मसीही कौम भी साथ दिया था। एक ऐतिहासिक बात है। उस समय उन्होंने कहा, जब इमाम साहब से कहा कि आप परेशान मत होइए, यदि शहादत की बात आएगी तो आप अकेले की नहीं होगी, हम भी आपके साथ में चलेंगे। तो मैं अपनी मसीही समाज की ओर से ये पैगाम देना चाहता हूँ, मसीहत हमेशा हर एक कौम के साथ, हर एक जाति के साथ, हर एक धर्म के साथ खड़ी है, और जहाँ जहाँ भी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, वहाँ सही करने के लिए क्रिश्चियनिटी हमेशा साथ में है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या जैन हो, वट एवर वेर एवर। मुल्क की कई रियासतों समेत उत्तर प्रदेश में इंतखाबात होने वाले हैं, और इस दौरान पसमानदा मुसलमानों में बेचैनी शुरू हो गई है। पसमानदा मुस्लिम तंजीमों की तरफ से मुतालबा है कि उनकी आबादी के तनासब से उन्हें नुमाइंदगी दी जाए। इसी सिलसिले में दिल्ली में वहाँ मुस्लिम तंजीमों और अतियाद-ए-हिंदगान का एक नुमाइंदा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें हुकूमतों को इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया गया वो पसमानदा लोगों को उनका हक देने के लिए काम नहीं कर रही है। प्रोग्राम के दौरान करारदाद मंजूर की गई कि तमाम पार्टियों के साथ साथ वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह को एक ख़त लिखा जाए और पसमानदा मुसलमानों की हिस्सेदारी की मांग की जाए। आज के इस सम्मेलन से केवल ये मांग करते हैं उन तमाम राजनीतिक दलों से भी और तमाम मिली तंजीमों से भी कि आबादी के तनासुब से, आबादी के अनुपात में आप उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करें, उनको हर वो मौका दें जिस मौके से वो पॉलिटिकल मजबूत हों, तो अपने समाज को भी वो मजबूत कर सकें। हमारे साथ हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर अनीस अंसारी साहब। अंसारी साहब, क्या वाकई इस आज़ाद भारत में पसमानदा मुसलमानों को हाशिए पर ढकेला गया और किस तरीके से उन्हें बाहर रखा गया? हिंदुस्तान में अगर हिंदू, मुसलमान और सिखों की सारी आबादी को ध्यान रखें तो उत्तर प्रदेश में भी और पूरे हिंदुस्तान में हर 100 में से 56 लोग बैकवर्ड कम्युनिटी के, पिछड़े तबके के। इसमें 42% गैर मुस्लिम है और 14%, 1/4 मुसलमान ओबीसीज है। यूपी में मुसलमानों की कुल आबादी में 70% पसमानदा तबकात है। 34 बरादरियाँ मंडल कमीशन ने रिकॉग्नाइज की, लेकिन उनकी हर एरिया में हिस्सेदारी कम है। पॉलिटिक्स में कम है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, तालीम गाहों में कम है, इनकम के जो ज़राए हैं उनमें कम है, और समाज में जो उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, ईमानदार और इज़्ज़त का, उसमें भी कमी है। तो उन्हें ज़बरदस्ती ढकेला गया, ये तो कहना हमारे लिए मुश्किल है। मैं समझता हूँ किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी ख़ानदान के लिए आगे बढ़ने के लिए ख़ुद कोशिश करना चाहिए। ढकेलने में समाज की जो संस्थाएं हैं वो ज़रूर कुछ किरदार अदा करती हैं, और चूँकि हमारे मुल्क में ज़मींदारी थी, फ्यूडल सिस्टम था, तो उसमें जो हिंदू हो या मुसलमान, सभी पिछड़े तबकों के साथ, यहाँ तक कि औरतें, अपर कास्ट की औरतें, उनके साथ भी तफरीक होती थी। लेकिन जिस तरीके से अगर देखें आप लोग, प्रधानमंत्री मोदी को ख़त लिखा जा रहा है, अमित शाह को ख़त लिखा जा रहा है, साथ ही साथ जो तमाम दूसरी कौमी पार्टियां हैं उनको ख़त लिख रहे हैं, तो क्या वाकई वो आप लोग को हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हैं? उनसे आप लोग क्या चाहते हैं?
कोई हिस्सेदारी देता नहीं है। ये गलतफहमी हटना चाहिए। कोई शख्स पावर में अगर है, मसलन यूपी की जो स्टडीज़ हैं उससे ज़ाहिर होता है कि हर एक पसमानदा के मुकाबले में कम से कम 3 गैर पसमानदा अफराद ओहदों पर हैं। तो वो लोग अपनी मर्ज़ी से थोड़ी कहेंगे कि हम 3 की जगह 2 हुए जाते हैं, आप 1 ले जाइए। हम एक हैं, जो पसमानदा कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोशिश करनी होगी कि तालीम हासिल करें, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ें और पैसा कमाएं। ये तीनों जो पिलर्स हैं ताकत के, इक़्तिदार के, उसमें जब खुद मेहनत करेंगे, उनकी तंजीमें मेहनत करेंगे, तब उनको जगह मिलेगी। ये चलती ट्रेन है, जो धक्का मार के घुस जाए उसको जगह मिलेगी। बैठे रहिएगा इंतज़ार में तो कोई जगह नहीं देगा। लेकिन अगर एक जो आप लोग का जो जिसमें तजावीज़ पास हुई हैं उसमें ये भी कहा गया है कि जो हमारे मुस्लिम तंजीमें हैं उनके अंदर भी पसमानदा मुसलमान नहीं है, उनको भी कहा जा रहा है कि आप हमें जो है कम से कम हमें हमारी नुमाइंदगी दीजिए। ये सही कहा जा रहा है, ये बिल्कुल सही है कि अशराफिया तंजीमों में गैर अशराफिया तबक़ात की नुमाइंदगी बहुत कम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप को नुमाइंदा तंजीम कहता है मुसलमानों की, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि 1-2 लोगों को छोड़कर पसमानदा बिरादरी के कोई भी अच्छे मुसलमान को उसमें रखा गया हो। तो कोशिश करना चाहिए, पसमानदा कम्युनिटीज़ को इसका मुतालबा भी करना चाहिए। और अगर उन तंजीमों में कोई जगह नहीं देता, देखिए किसी से हम कहें अपने घर में खाना खिलाने बुलाइए, हमें मदो करिए, तो नाजायज़ या गैर वाजिब बात। उनकी तंजीमों में हम क्यों जगह चाहते हैं? हम अपनी तंजीमें खड़ी करें पसमानदा बिरादरी की। अगर पर्सनल बोर्ड जगह नहीं देता है पसमानदा बिरादरियों को, तो आप पसमानदा पर्सनल बोर्ड क्रिएट कर दीजिए। जैसे महिलाओं का एक पर्सनल बोर्ड करो, जैसे शिया कम्युनिटी, आप अपनी तंजीमें खुद खड़ी करिए, उसमें आपको नुमाइंदगी मिलेगी पूरी। मगर एक एहतियात करना चाहिए, देखिए खाली कास्ट की बुनियाद पर अगर लड़ाई लड़ी जाएगी कि हम पसमानदा हैं इसलिए हमें हक़ मिलना चाहिए, और जो गैर पसमानदा है उनको हक़ नहीं मिलना चाहिए, तो वो मुझे लगता है वही चीज़ होगी जो कास्ट सिस्टम में इनहेरेंट है। लेकिन अभी जो नया सवाल आया है कास्ट बेसिस सेंसस को लेकर के, क्या वो सवाल वाकई इसको ठीक कर सकता है? उससे बहुत फ़ायदा होगा। कास्ट सिस्टम से ये पता चलेगा, अव्वल तो सर गिन लिए जाएंगे कि सवर्ण तबका कितना है, पिछला तबका कितना है, दलितों की तो पहले ही गिनती होती है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो स्टेटस है उनका, कि बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में, जिसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में मसलन कितने असेट्स हैं, कितनी जायदाद है, कितनी तालीमी लियाकत है, कितना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ये चीज़ें पता चल जाएंगी। आने का कैमरामैन फिरोजवानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पटना के हज भवन कोचिंग में दाखिले के लिए टेस्ट का इम्तिहान मुनक्किद किया गया। वाज़ेह है कि हज भवन कोचिंग में बीपीएससी की तैयारी का मुफ्त इंतज़ाम है। इस टेस्ट के इम्तिहान में 3200 तलबा ने शिरकत की। टेस्ट इम्तिहान का रिज़ल्ट 6 अक्टूबर को आएगा और 10 अक्टूबर से बाकायदा कोचिंग की शुरुआत हो जाएगी। इम्तिहान में कामयाब होने वाले 1500 तलबा और तालिबात की हज भवन में मुफ्त कोचिंग होगी। ये कोचिंग रिहायशी कोचिंग है जहां तलबा हज भवन में क़याम करेंगे और बीपीएससी की तैयारी करेंगे। टेस्ट इम्तिहान के मौके पर महकमे अक़लियती फ़लाह के वज़ीर भी मौजूद रहे और तलबा की हौसला अफजाई के साथ साथ उन्हें हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिलाया। राब्ता मिल्लत का शुमार कर्नाटक के मारूफ मिली व समाजी तंजीमों में किया जाता है। रायचूर ज़िले के मानवी में राब्ता मिल्लत का दूसरा सालाना जलसा मुनक्किद हुआ। इस मौके पर दीगर बरादरान वतन के साथ मज़ीद बेहतर ताल्लुकात बनाने और तंजीम की जानिब से मुस्तक़बिल के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर गौर व खौज़ किया गया। पेश एक रिपोर्ट। राब्ता मिल्लत कर्नाटक के रियासती सदर मौलाना मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मुल्क में मिली इत्तेहाद से ही फ़िरका परस्ती को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि मिली इत्तेहाद का नतीजा है कि मानवी जैसे शहरों में अमन व अमान और भाईचारा बाकी है। मौलाना यूसुफ ने मजीद कहा कि दीगर बरादरान वतन से बेहतर रवाबित कायम करने और इस्लाम के ताल्लुक़ से पाई जा रही गलत फहमियों को दूर करने के मकसद से ही राब्ते मिल्लत तंजीम का क़याम अमल में लाया गया है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसने के बावजूद अगर एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते हैं, राब्ता कायम करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके ज़रिए से भी मुल्क के अंदर अमन व अमान के क़याम का एक मौका मिल जाता है। लिहाजा हमारा कहना ये है कि राब्ते मिल्लत का एक मकसद ये भी है और वो ये है कि गैर मुस्लिम भाइयों से अच्छे रवाबित कायम कर सके।
राब्ते मिल्लत शाख मानवी जिला रायचूर के सदर सैयद अकबर बाशा ने बताया गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान राब्ते मिल्लत की जानिब से मुख्तलिफ फलाही व समाजी काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुमकिन हद तक ज़रूरतमंदों और परेशान हाल लोगों की मदद की गई है। सैयद अकबर बाशा ने बताया कि आने वाले दिनों में तंजीम की जानिब से मानवी बिलासूदी बैंक और गरीबों के लिए अस्पताल के अलावा कॉलेज कायम करने का मंसूबा है। पूरे जमातों को एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल भी कर रहा है। और आने वाले दिनों में राब्ते मिल्लत की तरफ से बहुत से काम, एक एडजस्ट फ्री बैंक भी होगा, एक कॉलेज और एक दवाखाना, ये हमारे इसमें विजन में और सोच है हमारे इसमें जो भी हो सकता है मिल्लत के साथ इंशाअल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे। राब्ते मिल्लत के दूसरे सालाना जलसे के दौरान मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम के अलावा मशाइखीन इज़ाम ने भी खिताब किया और दौर हाजिर में मिल्ली इत्तेहाद की ज़रूरत पर रोशनी डाली। उलमाए किराम ने नफरत का जवाब मोहब्बत से देने की आवाम से अपील की। रायचूर से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लक्षद्वीप के मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं है, बल्कि शक करने की किसी को जुर्रत भी नहीं करनी चाहिए। लक्षद्वीप में मौजूद मुस्लिम आबादी के पैट्रियटिज्म को टेस्ट करने की जरूरत इस धरती पर कोई नहीं कर सकता है, मैं विश्वास के साथ, क्योंकि इसके पहले भी लक्षद्वीप में आना हुआ है। होम मिनिस्टर रहते हुए इंटेलिजेंस भी हमारे पास था, आईबी भी हमारे पास थी, उससे भी जो मुझे सूचनाएं प्राप्त हुई, कोई यह नहीं कह सकता कि लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों के पैट्रियटिज्म पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाया जा सके। यह बात मैं विश्वास के साथ नहीं। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से हर साल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इंटरनेशनल पीस अवार्ड दिया जाता है। इंटरनेशनल पीस अवार्ड ऐसे गैर मुस्लिम अफराद को दिया जाता है जो इस्लाम और दीन के ताल्लुक से गैर मामूली खिदमात अंजाम देते हैं। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के सदर एम ए मुजीब ने बताया कि इस साल इंटरनेशनल पीस अवार्ड अनिल कुमार चौहान को दिया जाएगा। अनिल कुमार चौहान अरबी तहरीर के माहिर हैं। अनिल कुमार चौहान मसाजिद में अरबी आयतों को तहरीर करने का काम करते हैं। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अनिल कुमार चौहान की जानिब से तहरीर करदा अरबी तोगरों की नामपल्ली में वाक़े मदीना एजुकेशन सेंटर में नुमाइश भी मुनक्किद होगी। हर साल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रहमत आलम इंटरनेशनल पीस अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड ऐसे गैर मुस्लिम फ़र्द को दिया जाता है जो इस्लाम और इस्लाम के ताल्लुक़ से नुमाया कारकर्दगी अंजाम देता रहा है। इस साल रहमत आलम इंटरनेशनल पीस अवार्ड अनिल कुमार चौहान साहब को दिया जाता है और ये अवार्ड अनिल कुमार चौहान साहब को मिलादुल नबी ईद मिलाद के मौके पर इंशाअल्लाह ताला अगर 19 अक्टूबर को अगर ईद मिलाद होगी तो 19 अक्टूबर को मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली पर सुबह 11 बजे यह अवार्ड दिया जाएगा और उससे पहले सुबह 10 बजे एक कैलीग्राफी ख़त्ताती का एक एग्ज़िबिशन का इफ्तिताह उसी मदीना एजुकेशन सेंटर में सुबह 10 बजे एग्ज़िबिशन का इफ्तिताह होगा और वो दिन भर रहेगा। फिर दूसरे दिन भी वो 2 दिन का एग्ज़िबिशन रहेगा। रहमत आलम कमेटी की जानिब से जो मुझे अवार्ड दिया जा रहा है, मैं काफ़ी मसरत का इजहार कर रहा हूँ और आवाम से गुजारिश है कि काफ़ी तादाद में आकर खत्ताती की नुमाइश का भी मुशाहिदा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं काफ़ी बरसों से मस्जिदों में कुरान की आयतें वगैरह लिखता आ रहा हूँ। मैं खत्तात हूँ कि हर इंसान जो सो हैदराबाद में बहुत खुलूस मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम का काफ़ी इत्तेहाद है, गंगा जमनी तहज़ीब है, तो मैं ये गंगा जमनी तहज़ीब की रवादारी में काम कर रहा हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे यह अवार्ड देने के लिए इंतखाब किया गया। बज़्म जावेद गड़पा की जानिब से प्रोफेसर सुलेमान अतहर जावेद के नाम याद जावेद का इनकाद अमल में लाया गया। करनूल में मुनक्किदा तकरीब में रुकन असम्बली हफीज़ खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की।
प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर सैयद अब्दुल सत्तार साहिर सदर शोबे उर्दू SV यूनिवर्सिटी तिरुपति ने की। इजलास में तालीम व तदरीस, मिली खिदमात, शेर व अदब, फ़नून के मैदान में काबिल सताइश खिदमात अंजाम देने वाले मुहिब्बान उर्दू को एतराफ़ खिदमात के लिए तहनीत पेश की गई। जावेद के तहत यादगार जावेद शहर करनूल में 3 अक्टूबर 2021 को बनाया गया है। इस बज़्म के तहत इल्मी व अदबी कारनामे तरक्की करने के लिए प्रोफेसर सलमान जावेद साहब के तालीमी खिदमात को मलहूज़ रखते हुए उनके शागिर्दान में एक एसोसिएशन बना है जिसका नाम बज़्म जावेद रखा गया है, जिसके सदर प्रोफेसर सैयद अब्दुल सत्तार साहब हैं। उनकी सदारत में कई कारनामे हो रहे हैं, इल्मी अदबी कारनामे हो रहे हैं, बैतबाजी हो रही है, क्विज़ हो रहा है, सेमिनार हो रहे हैं, कई लेक्चर्स हो रहे हैं। इसी तरह कोरोना आने की वजह से सब ऑनलाइन किए थे, ऑफलाइन में करफे में 2-4 मरतबा हो गया है। शहर करफे में ये पहली मरतबा है। इसका सिलसिला आगे चलता रहेगा। तकरीबन तलबा में इल्मी बेदारी पैदा करने के लिए तकारीरी मुकाबला रखे। तमाम डिग्री कॉलेज के सतह पर फाइनल ईयर के तलबा को तकारीरी मुकाबले में इनाम अव्वल, दुआम, सुवम आने वालों को इनाम के मुस्तहक़ दिए हैं। जो शरीक करे हैं उनको भी असनाद दिए हैं। करनूल में बज़्म जावेद का क़याम एक खुशाइंदा अमल रहा है। चुनांचे इस ताल्लुक़ से सुलेमान अत्तल जावेद साहब के हयात और कारनामों पर प्रोफेसर और उलमाए उर्दू ने अपने ख़यालात का इज़हार फरमाया। जावेद साहब की शख्सियत कदावर शख्सियत रही है।